Hello बच्चों. In our last video we were learning the communication skills. Now let's change the topic. Our first topic of part B, that is working with accessibility skills. अब एक नई टर्म आई है, that is accessibility. Means what one person can access. क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते हैं. Fine, that is accessibility options. Let's go one through with this. With the advent of digital technology and consequent transformation in the society, there are so many changes. We have smartphones in our hands. A vast technological growth is there. We can paint on computers. We don't need colors, brushes, all that in physical form. We don't need. Everything is possible on your computer. Fine, means everything is in our hand, only at a reach of just one click. कोई भी काम हम imagine करें, that can be done on computer. Fine, but there are some people in the society which are differently abled. ओके एक टर्म आती है डिसेबल्ड, बट आई एम यूजिंग विच आर डिफरेंटली एबल्ड, जिनके अंदर कुछ और पावर्स होती हैं और कुछ डिसेबिलिटीज होती हैं. तो फॉर देम हाउ दिस टेक्नोलॉजी इज असिस्टिंग देम. Okay, those features are named as disability option. For example, visual impairment means those persons who have some issues in their visibility, means maybe they are totally blind, maybe they are color blind, maybe their impaired eyesight is there, they may be having cataract. All that means any issue in their eyesight. Fine. Same way, some people may be there which are having hearing impairment, means in hearing them there may be some issue. Fine. There may be some people who are having physical or motor impairment, means कुछ लोग ऐसे होंगे who are not able to move their hands, move their fingers. Then learning disabilities means how to fight through technology through these disabilities. These are, हम word use कर रहे हैं disability, but in generally they are called differently abled person. Fine. Now in system, in your computer system, we have to launch accessibility options. Okay, means जो अभी हमने पीछे पढ़ा, hearing, eyesight, movement, all those disabilities, how they can be fought. For that, in your control panel area, system में सबके control panel होता है. Okay, we have to go to control panel first of all. Okay, step by step description here I have given. Let's start. चलिए, I am showing you. First of all, here you can type. There are many methods to go to control panel. This one I am finding the easiest one. Type control panel in your search bar at taskbar, or from start button you can also go. In the start button, then in your settings there is control panel. And on some system there is an icon of control panel on the desktop also. So click on desktop, that will be, double click on that control panel icon, that will be done. This is our control panel options. Here you will find this option, ease of access center. This is our accessibility center. Click on this. When you click on this, these options will open in front of you. Let's start one by one. अपनी PPT पे जाते हैं एक बार. Okay. In this, till here we have done ease of access center. Now next move to next one. This one is magnifier. The details I have written here, one by one will do it practically also. Okay, but you have to go through all these. I'll detail each. First of all, we'll click on start magnifier. When we click on start magnifier, this toolbar automatically appears in front of us. As you can see here, minus and plus buttons are there. When we click on plus, automatically your screen, you can see wherever you move with the mouse, the screen is in the zoom form. Got it? मैं इसको वापस 100 कर रही हूँ. Through plus
we can increase the zoom in and zoom out facility. Okay, and here this is zoom out, this is zoom in. Zoom in means we want to make it more larger, and zoom out we are decreasing the magnifier's ability. Okay, these two options we have done. Then we go to view option. In the view option, first is full screen. Right now when we increase the zoom magnifier facility, then at that time whole screen becomes big. Okay, whatever we are doing, that is applying to the whole screen. That's why first view pattern is full screen. Then comes to lens. When I click on lens, you can see along with my mouse pointer a rectangle is there, and the area within the rectangle is the zoom in. Suppose I'll click on plus, then you can see the area within this rectangle is in the magnified form. Okay, this view is called lens view. Let's move to third view, docked view. In the docked view, ये क्या हो गया भाई? Means our whole screen is divided into two screens. Fine, नीचे वाला screen बिल्कुल normal है, and wherever I am moving this mouse, same location is displayed here at the top. Same location दिख रही है at the top with the magnified view. मैं इसको और plus करती हूँ. Means now the percentage of viewing is 200. You can see जहाँ भी मेरा mouse pointer है, that same thing is displayed at the upper portion, and at the bottom the normal view is there. Okay, this view is called docked view. हम full screen पे ही चलते हैं. पहले 100% किया मैंने, and then moving to full screen. Got it? I think these views are clear. Now let's move to options. In the options, from here we can put it on and off. Both things we can do. Okay, from here we can increase or we can decrease the zoom level. Got it? Then here are some views that we can see. that start magnifier after sign in means जितनी बार मैं सिस्टम में लॉग इन करूँ पहले से ही magnifier ऑन मिले मुझे. These facilities we can put already enabled if we want. Then suppose in a computer there are more than one or two users, then for them we can set for every user we should start magnifier, then click on this. Okay, all these options are related to the same thing. After this we can see here collapse magnifier window to a floating transparent magnifying glass. Means जो हमारी window है that will be in zoom out or zoom in level through a magnifying glass. If want this option we can click on it. Okay, this magnifying glass is with you. Okay, if I click on this, that will move. Then smooth edge of images and text. If I'll click on this, the edges of your text or images, if we'll see an image, then the difference can be seen. Now next one is invert color. Suppose if someone is having any visibility issue with the white color और black में वो comfortable है, तो we can invert the colors. Black and white का बिल्कुल opposite हो गया. Background is black and text is white. Okay, I am disabling it. Okay, if we want then we can keep it enabled. Got it? Next is नीचे आते हैं. All these options are available in your system also. Please go to control panel and ease of access, then try all these. ये हो सकता है कि their appearance in your system is changed somehow, because in my system Windows 10 is there and it may happen you are having Windows 7 or 8 something else. Options are same, only their display is maybe little bit different. That can be. Now here whenever we are magnifying, at that time it is asking कि जब भी आप माउस का कर्सर जहाँ हो वहाँ पर आपका मैग्नीफाइंग होना चाहिए. wherever your keyboard keys you are typing, जहाँ टाइप हो रहा है वहाँ फोकस होना चाहिए. wherever the text is being typed there your zoom level should be there, or wherever cursor is there.
मीन्स ये सब जब आप ट्राई करेंगे ओनली एट दैट टाइम यू कैन गॉट टू नो व्हाट चेंजेस आर गोइंग ऑन. ओके. Next is screen narrator. Narrator means the person who speaks. Okay, these are for those persons who have visually impairment. Means वो सुन सकते हैं. Okay, they can hear properly. That's why सारे काम narrator कर रहा है. Means बोल बोल के सारे काम होंगे. The same thing I'll show you through the ease of access center. आ गए हम. Second option is start narrator. Mouse mode on. Narrator dialogue. We've Are you getting updated the the voice? Okay. I'll click on But OK. देखो, automatically it will keep narrator OK button. Okay. Ease of access center window. Okay. Then Task there some settings will open. Task narrators. सबसे पहले मैं Voice. इसकी आवाज कम Change करती हूँ. voice. ओके, आवाज बिल्कुल कम कर दी है मैंने इसकी. Voice volume. ठीक है. सेव चेंजेस करते हैं. शुरू से देखते हैं. I'll click on general. Here it will ask enable the shortcut to launch. Means these keys are there, control plus window plus enter. Okay, जैसे ही आप ये कीज प्रेस करेंगे it will enable. नहीं, अगर वापस प्रेस करेंगे it will disable. ओके. हियर करेक्टर एज यू टाइप. सपोज मैं कीबोर्ड से ए प्रेस करूंगी तो वो ए ही बोलेगा. चलिए लेट्स स्टार्ट विंडोज. वो सॉरी वर्ड. आई हैव ओपन द वर्ड. मैंने अभी आवाज बिल्कुल कम करी हुई है. वॉल्यूम बढ़ाती हूँ मैं इसकी नरेटर की. Voice volume. Save change. Taskbar pane. Document. W. देखा, मैं ए प्रेस कर रही. E. R. Y. ओके. Space. लुक, जो भी की मैं प्रेस कर रही हूँ दैट इज टाइप्ड हियर. अब वापस जाके एक बार आवाज कम करते हैं. Narrate. कौन बोल रहा है? Narrate. दिस इज Voice. कौन बोल रहा है? दिस इज नरेटर. ओके, ये जो डिस्टरबेंस आ रही है नरेटर की वजह से ही आ रही है. जहाँ पे भी मेरा माउस मूव करेगा इट विल कीप ऑन डूइंग दैट. ओके, वापस चलते हैं. हेयर रीड आउट वॉइस नरेटर. जहाँ भी मैं मूव करूंगी वो उस लाइन को पढ़ेगा. ओके, आवाज वापस से तेज करके दिखाती हूँ आपको. मैंने आवाज तेज Voice. Change the speed, pitch, or volume of the current voice. वापस कम कर दी मैंने आवाज. गॉट इट? आई थिंक इट्स क्लियर. नेविगेशन पे चलते हैं. रीड द इंटरेक्ट विद द स्क्रीन. मीन्स वेर एवर माई माउस विल बी मूविंग इट विल रीड आउट. तो मुझे देखने की कमी महसूस ही नहीं होगी. एवरीथिंग इज क्लियर टू मी. ओके, वेर एवर माई माउस पॉइंटर इज देयर दैट विल बी रीड आउट. इनेबल द टेक्स्ट इंसर्शन पॉइंट. मेरा माउस पॉइंटर जहाँ पर है और जो भी वर्ड मैं टाइप कर रही हूँ इट विल कीप ऑन टाइपिंग. ओके, इफ वी वांट टू सेव वी कैन सेव. अगर नहीं तो वी कैन डिस्कार्ड द चेंजेस. वॉइस में दिखा दिया. मीन्स उसके बोलने की स्पीड स्लो रखनी है, तेज रख. चलिए मैं फास्ट करती हूँ. अब मैं इसकी वॉल्यूम तेज कर रही हूँ. देखो दिख रहा है. दिस इज द स्पीड. मैं इसको मीडियम कर. Select the change the speed, pitch, or volume of the current voice, or choose select voice speed. और स्लो Voice speed. Change the speed. ओके, एंड पिच मुझे लो करनी है. Change the speed. गॉट इट? ये सब आप कर Voice. सकते हैं. राइट नाउ मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ. ओके, देन कमांड्स. मीन्स कौन कौन सी कमांड आप रन करना चाहते हैं. ओके, मीन्स शॉर्टकट्स आर गिवन हेयर. इट्स नॉट फॉर योर यूज बट इफ यू वांट यू कैन डू दैट. ओके, देन मिनिमाइज. when clicking on minimize it will go back, and by clicking on exit we can exit the narrator. Okay, I think narrator is clear to everyone. वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे जाते हैं. स्क्रीन नरेटर अभी हमने पढ़ा. वी कैन की स्ट्रोक्स की आवाज़ आ रही थी. जिस भी की पे मैं प्रेस कर रही थी आवाज़ आ रही थी. दैट इज थ्रू द सेटिंग्स.
कोई भी मैसेज पढ़ा जा रहा था, कोई भी नोटिफिकेशन, नरेटर मिनिमाइज हो गया था, स्पीड सेट कर सकते हैं, वॉल्यूम सेट कर सकते हैं, पिच वी कैन सेट, बट एक कंडीशन है, यू हैव टू ट्राई एटलीस्ट वंस ऑल द सेटिंग्स। ओके, जब तक आप अपने हाथ से करके नहीं देखेंगे इट विल नॉट बी क्लियर टू यू। गॉट इट? नेक्स्ट चलते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अब ये क्या होता है? चलिए, ऑल द डिटेल्स आई हैव रिटन हेयर इन वेरी ब्रीफ फॉर्म एंड प्रैक्टिकली आई एम शोइंग इट टू यू। एक बार देखते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मीन्स सपोज माई कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग। ओके, at that time the keyboard that is called on screen keyboard we can use, and if any person is having the issue in keyboard typing, fingers issue can be there, or mouse easily I can handle, then this is the best option. Means first option we can see use click sound, means जितनी बार मैं keyboard की कोई भी की दबाऊं at that time the sound must be there. Then numeric keypad should be displayed or not, clicking on keys sound must be there. These three are different typing ways. Then using the input device, text prediction means जैसे मैं KEY टाइप करूँ तो suggestions must be shown in front of me कि कीबोर्ड टाइप कर रही हूँ, कीपैड टाइप कर रही हूँ, अगर कोई सजेशन मुझे मैच होता है जैसे हम व्हाट्सएप में करते हैं, सेम पैटर्न इज देयर. लेट्स मूव टू आर ईज ऑफ एक्सेस सेंटर. मैं ईज ऑफ एक्सेस पे आ गई. थर्ड ऑप्शन इज स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड. आई क्लिक्ड ऑन इट. You can see keyboard is here. Let's open a word file. मैंने word file खोल ली अपने आगे. Okay, now look. I think आवाज आ रही है. Got it? This is on screen keyboard. Right now I am clicking on the on screen keyboard and whatever I am clicking that same key is typed here. Got it? Now here so many options. Option है यहाँ पर. मैं इधर आई हूँ. चलिए वन बाय वन करते हैं. यूज क्लिक साउंड में बंद कर दिया मैंने साउंड. अब क्या होगा? ओके करना पड़ेगा पहले. अब देखिए आई एम क्लिकिंग. यहाँ मैंने क्लिक किया. नाउ टाइपिंग इज गोइंग ऑन बट साउंड इज नॉट देयर. वापस ऑप्शंस पे गई और साउंड कर दी. अब ओके किया. नाउ साउंड इज देयर. ओके, लुक शो कीज टू मेक इट ईजियर टू मूव अराउंड द स्क्रीन. लुक जैसे मैं वाई पे की ले गई हूँ, इट इज़ हाईलाइटेड. कीज इज इजीली विजिबल टू मी. लुक वेर एवर आई एम मूविंग इट इज़ हाईलाइटेड. ओके, देन अब कीबोर्ड दिख रहा है मुझे आपको पूरा. थर्ड ऑप्शन पे जा रहे हैं हम. टर्न ऑन न्यूमेरिक कीबोर्ड. क्लिक किया, कोई चेंज नहीं है. मैंने जैसे ही ओके किया, चेंज इज देयर. दिस न्यूमेरिक कीपैड इज ऑलरेडी एडेड. पहले नहीं था. दोबारा देखते हैं. मैंने क्लिक किया, डिसेबल कर दिया ऑप्शन. नाउ ओके गया, गायब हो गया. दिस इज हाउ वी कैन इनेबल और डिसेबल द न्यूमेरिक कीपैड. ओके, नाउ क्लिक ऑन कीज. मीन्स टाइपिंग कैसे करें? 3 मेथड्स आर देयर. फर्स्ट इज क्लिक ऑन कीज. जिसमें की पे क्लिक करूं दैट विल कैरी ऑन माई टाइपिंग. लुक दिख रहा है? दिस इज हाउ द टाइपिंग इज गोइंग ऑन. सेकेंड ऑप्शन पे मैं क्लिक करती हूँ. ओके, होवर. होवर अब समझना मीनिंग इसका क्या है. देखो क्या हुआ. देखो यहाँ मैंने कर्सर लिखा. ओके, या नेक्स्ट लाइन में आती हूँ मैं. नाउ माई कर्सर इज देयर. ऑटोमेटिकली इट विल स्कैन. आई एम नॉट क्लिकिंग. सिर्फ मैंने अपना माउस उसके ऊपर रखा हुआ है. पॉइंटर इज ऑन दैट पर्टिकुलर की. दिस ऑप्शन इज होवर. इट ऑटोमेटिकली स्कैन्स योर your keys and then it is time taking process. That's why we generally go through this. Scan through keys means आप इस पे क्लिक करते हैं. ओके किया, इट विल ऑटोमेटिकली स्कैन ऑल द लाइन्स. और ये उससे भी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है. दैट्स वाई द बेस्ट ऑप्शन इज क्लिक ऑन कीज. ओके, अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन. इसका नीचे आ जाते हैं. टेक्स्ट प्रेडिक्शन. जो अभी मैं कहती थी व्हाट्सएप पे हम कोई वर्ड टाइप करते हैं उसका सजेशन ऊपर ऑटोमेटिकली आता है. यहाँ मैं इसको बंद कर देती हूँ. अब आप देखेंगे मुझे एप्पल लिखना है. मैं नेक्स्ट लाइन में आ गई हूँ. APP कोई सजेशन नहीं आ रहा है. द कंप्लीट एप्पल आई हैव टू टाइप. ओके, नाउ वापस चलते हैं और हम इसको ऑन किया हमने. गॉट इट? ओके, अब मैं वापस नेक्स्ट लाइन में आ गई हूँ. APP
P, so many options are there. दिख रहे हैं? मीन्स these are the predictions. जो ऑप्शन हमने इनेबल किया हम क्लिक करेंगे, that complete word is typed here. This was the keyboard on screen keyboard option settings. I think they are clear to you. Our next topic is set up high contrast. अब contrast कैसे पता लगता है? आँखों से. Okay, means those who have visibility issues, for them this option is there. Let's move to our ease of access center. फिर हमें ज़्यादा समझ में आएगा. ease of access पे आ गई. Fourth option is set up high contrast. When we click on this, many options are here. First one is choose a high contrast theme. Okay, here many options are there. Turn on और ऑफ हाई कंट्रास्ट. अब कुछ कीज़ दी हुई है, लेफ़्ट ऑल्ट, लेफ़्ट शिफ्ट एंड प्रिंट स्क्रीन. मैं यही करती हूँ, लेफ़्ट ऑल्ट, लेफ़्ट शिफ्ट एंड प्रिंट स्क्रीन. ये मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट टू. यस, मुझे करना है. नाउ व्हाट द चेंज विल बी देयर. देखेंगे, लुक कंट्रास्ट उल्टा हो गया बिल्कुल. नाउ द स्क्रीन इज हैविंग मोर कंट्रास्ट. ऐसा होता है दैट मैनी पर्सन आर मोर कंफर्टेबल इन दिस व्यू. एंड वापस वही कीज़ में दबाती हूँ, लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट ऑल्ट एंड प्रिंट स्क्रीन. नाउ अगेन इट विल बी बैक टू द प्रीवियस वन. गॉट इट? फाइन. अगर मैं इस ऑप्शन को डिसेबल कर दूँ तो देन दीज शॉर्टकट कीज विल नॉट वर्क एट ऑल. क्लियर? देन डिस्प्ले अ वार्निंग मैसेज व्हेन टर्निंग अ सेटिंग इज ऑन. अभी जब मैंने प्रेस किया आपने देखा था मैसेज आ रहा था डू यू वांट टू डू और नॉट. तो दिस इज ड्यू टू दिस ऑप्शन. मैं इसको अनक्लिक कर दूं तो इट विल नॉट आस्क. देन मेक अ साउंड. आपको आवाज़ भी आई होगी, मैं दोबारा करके दिखाती हूँ. देखिए आवाज़ आई और इट इज़ आस्किंग मी द मैसेज. ओके, राइट नाउ आई एम डूइंग नो. इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू देन पुट ऑन इट, अदरवाइज अनटिक दैम. क्लियर? देन हियर टेक्स्ट. नरेटर ऑन करना. नरेटर का यूज़ मैं अभी बता चुकी हूँ आपको. टर्न ऑन ऑडियो डिस्क्रिप्शन मीन्स जहाँ पे भी आपका माउस मूव करेगा इट विल रीड आउट ऑल दोज. ओके, दीज आर दोज. मैग्नीफायर हम कर चुके हैं, नरेटर हम कर चुके हैं. ऑल दीज वी हैव डन. आई थिंक इट्स क्लियर. और ये होने के बाद वी हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई एंड देन ओके. तब आपकी जो भी सेटिंग्स आपने करी हैं दे विल बी अप्लाइड. गॉट इट? ऑल द सेम थिंग्स आर हेयर. ओके, बट कंडीशन इज आपको एक बार करके देखना है. ओके, फर्स्ट गो थ्रू ऑल दिस रिटन मैटर एंड देन डू इट वंस. चलिए नेक्स्ट, यूजिंग रिकमेंडेड सेटिंग्स. अब मोस्टली काम हम कर चुके हैं, सेम ऑप्शंस रिपीट हो रहे हैं. वापस ईज ऑफ सेटिंग, ईज ऑफ एक्सेस पे चलते हैं. इन दैट ईज ऑफ एक्सेस वेयर दैट हैव गॉन, आई थिंक दोबारा जाना पड़ेगा. कंट्रोल पैनल पे गए हम एंड आई क्लिक्ड ऑन ईज ऑफ एक्सेस. ये ऑप्शन था हमारा पीपीटी में. नेक्स्ट यूजिंग रिकमेंडेड सेटिंग्स मैं गई. दिस इज क्लिक किया मैंने. नाउ मीन्स इट इज आस्किंग सम स्टेटमेंट्स. इमेजेस एंड टेक्स्ट ऑन टीवी आर डिफिकल्ट टू सी. कुछ पूछ रहा है कि आपको टीवी देखने में दिक्कत होती है. मीन्स चश्मे पहनने पड़ते हैं. अगर आप पहनते हैं तो यस. Light conditions make it difficult to see images on my monitor. Means lights की वजह से आपको monitor पे images देखने में problem है. Are you blind? Or if you have another type of vision impairment, any problem if you are having, we can click on any of the option. Then we will move to next. ये और पूछेगा आपसे, आपको पेन पकड़ने में इशू है, आप कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं. आपको मीन्स ये प्रॉब्लम किस लिए पूछ रहा है. आपको हियरिंग प्रॉब्लम है, ऊंचा सुनता है, ओके, या बिल्कुल नहीं सुनता है. मीन्स जो जो चीज़ें अभी हमने की हैं ये वही चीज़ें आपसे इन क्वेश्चन फॉर्म इट इज़ आस्किंग. एंड जब आप सब चीज़ों पे क्लिक कर देंगे लास्ट में डन करेंगे. मैं अभी कैंसिल कर रही हूँ, आपको सिर्फ दिखाना था मैंने. जो जो चीज़ें आप टिक करेंगे इट विल डू द ऑटोमेटिक सेटिंग अकॉर्डिंग टू देम. अगर आप इसमें लिखेंगे आई हियर थोड़ा लाउड, ओके, देन ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट ऑन नरेटर इन अ लाउड पिच. Okay, and if the visibility issue you will select, so it will show maybe the contrast or maybe the color combination will change. Automatic settings are done as per your chosen options. Okay,
चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लोर ऑल सेटिंग्स। अब उसके अलावा और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं। फर्स्ट, यूज़ द कंप्यूटर विदाउट अ डिस्प्ले। ऑल दीज ऑप्शंस जो भी यहाँ दिख रहा है सब आपके सेटिंग में। आई एम डिटेलिंग ईच एंड एवरी पॉइंट बट प्रैक्टिकली। चलिए लेट्स मूव टू ईज ऑफ एक्सेस। दिस इज दैट ऑप्शन, वही आपके वहाँ स्लाइड में है। यूज़ द कंप्यूटर विदाउट अ डिस्प्ले मीन्स डिस्प्ले की ज़रूरत नहीं है, मॉनिटर की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स व्हाट, द पर्सन यूजिंग द कंप्यूटर इज़ विजुअली इम्पेयर्ड, उसको देखने में इशू है, विजिबिलिटी इशू है। ओके तो जिसको दिखने में प्रॉब्लम है उसके लिए नरेटर ऑन करना पड़ेगा। नरेटर मीन्स अभी मैंने दिखाया था, द पर्सन हु इज़ हैविंग अ वॉइस मीन्स आपको सिस्टम ही बोल बोल के सारी इंस्ट्रक्शंस सुनाएगा। ओके आप ये ऑन करेंगे, ऑडियो डिस्क्रिप्शन ऑन करेंगे और जो भी चीज़ें आपको चाहिए दैट ऑल थिंग विल बी। ये सिर्फ नरेटर वाला काम है जो हम सब कुछ कर चुके हैं। ओके वापस आते हैं। नरेटर, नेसेसरी एनिमेशंस, टर्न ऑफ ऑल अननेसेसरी एनिमेशंस। दिस ऑप्शन टर्न ऑफ एनिमेशन इफेक्ट्स मीन्स फालतू चीज़ें, जैसे कई बार कोई भी एनिमेशन रन होती है तो रन करने के लिए मीन्स कोई देख रहा है तभी उन्हें एनिमेशंस का यूज़ है ना। इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू मीन्स पर्सन इज नॉट एबल टू व्यू, तो दैट्स वाई ऑटोमेटिकली द एनिमेशंस विल बी पुट ऑफ। ये ऑप्शन ये रहा यहाँ पर, ठीक है। आप इसको टिक कर देंगे, ऑटोमेटिक जितने भी ऑप्शंस होते हैं दैट विल बी पुट ऑफ। ओके बट वही चीज़ आपको यहाँ पर अप्लाई करके ओके करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए वापस नेक्स्ट चलते हैं। Make the computer. Now our next topic is make the computer easy to see. Means to increase the visibility. Means जिनको आई डिफेक्ट्स हैं, किसी को कम दिखता है, किसी को लाइट कलर्स नहीं दिखते, किसी को माउस का पॉइंटर नहीं दिखता, ऑल दोज इश्यूज हाउ कैन बी रेक्टिफाइड यूजिंग ईज ऑफ एक्सेस। अब हम आ गए हैं ईज ऑफ एक्सेस की विंडो पे। दिस इज द सेम ऑप्शन, मैं दोनों विंडोज आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। मेक द कंप्यूटर इजियर टू सी, दिस इज द ऑप्शन। व्हेन वी क्लिक ऑन दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी चूज अ हाई कंट्रास्ट थीम। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम हेयर हाई कंट्रास्ट सेटिंग्स, टर्न ऑन हाई कंट्रास्ट। व्हेन वी पुट इट ऑन, बटन को जैसे ही ऑन करेंगे ऑटोमेटिकली द कंट्रास्ट स्क्रीन विल बी देयर। ये हमने आपको बता चुके हैं, दिस वन वी हैव ऑलरेडी डन। ओके मैं इसको वापस वैसे कर रही हूँ। देन नेक्स्ट ऑप्शन देयर इज, बैक चलते हैं अपना। नेक्स्ट ऑप्शन नरेटर है हमारा वही पुराना, हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये ऑडियो डिस्क्रिप्शन है। यहाँ से हम आ गए फाइन ट्यून डिस्प्ले इफेक्ट्स। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, इट विल शो डिफरेंट ऑप्शंस कि मुझे बैकग्राउंड में सॉलिड कलर, सिंगल कलर चाहिए, कोई भी अपनी मर्जी का। ओके स्लाइड शो चाहिए, 2-4 मेरे पास इफेक्ट्स हैं, उनको रन करते हुए मुझे चाहिए, या कोई पिक्चर चाहिए। ओके मुझे फिट स्टाइल में चाहिए, या टाइल स्टाइल में चाहिए, या सेंटर में मेरी इमेज चाहिए। वट एवर यू वॉन्ट दैट वी कैन डू फ्रॉम हेयर। ओके नेक्स्ट ऑप्शन हेयर इज मेक द फोकस रेक्टेंगल थिकर। जब हम मैग्नीफायर ऑन करते हैं एट दैट टाइम हमने 3 व्यू पढ़े हैं। फर्स्ट इज फुल व्यू, फुल स्क्रीन, देन डॉक्ड स्क्रीन जिसमें 2 स्क्रीन बन जाते हैं, एंड अदर वन इज लेंस जिसमें हमारा रेक्टेंगल बनता है। फॉर दैट रेक्टेंगल हेयर द ऑप्शन इज मेक द फोकस रेक्टेंगल थिकर। तो जो रेक्टेंगल की बाउंड्री है उसको थिकर करना है, तो वी विल क्लिक ऑन दिस। देन माउस का जो पॉइंटर है, जो कर्सर है, कई बार बहुत पतली लाइन होती है, दैट इज नॉट विजिबल टू अस, द थिकनेस ऑफ दैट लाइन वी कैन इंक्रीज। हमें जनरली ऐसा कर्सर दिखता है, बट वी कैन इंक्रीज द थिकनेस एज पर आवर चॉइस। ओके देन रिमूव द बैकग्राउंड इमेजेस। बैकग्राउंड में कोई भी इमेज है फालतू या कोई एनिमेशन है, दैट वी कैन रिमूव बाय क्लिकिंग ऑन दीज 2 ऑप्शंस। क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके, ऑल दीज विल बी डन। ओके चलिए अपनी वापस पीपीटी पे आते हैं। दिस वन वी हैव डन, कर्सर थिकनेस वी हैव लर्नड हाउ टू इंक्रीज, बैकग्राउंड इमेजेस वी हैव लर्नड हाउ टू remove, fine tune we have learnt, all things we have done. Let's move to next,
use the computer without a mouse or keyboard. If we are not familiar or we are not habitual of using mouse or keyboard, then how? हमने ये चीज़ पढ़ी है, use on screen keyboard. In the previous slides we have done, and use speech recognition, means with speaking how the work can be done. चलिए let's move again to our ease of access center. Here the same option we will search it out. Here this is use the computer without a mouse or keyboard. यहाँ I am with clicking on this on screen keyboard will, जैसे ही मैं अप्लाई और ओके करूँगी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड विल अपीयर. वर्किंग ऑफ दैट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड वी हैव ऑलरेडी लर्नड. न्यू ऑप्शन क्या है यहाँ पर? यूज स्पीच रिकॉग्निशन. जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ दीज ऑप्शंस विल ओपन इन फ्रंट ऑफ अस. हेयर वी विल स्टार्ट स्पीच रिकॉग्निशन. जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ यू कैन सी हेयर दिस माइक एंड दिस इज स्टार्टेड, मीन्स वट एवर आई स्पीक it will start listening to it. Okay, right now I have not applied and click on OK, that's why it's not working. This is the option. Through microphone we want to use or through speaker we want to send without using the earphones. All those choices are ours only. अपनी स्लाइड्स पे वापस आते हैं. I think these two options are clear. Next, makes the mouse easier to use, means some people found your mouse little bit difficult, that how it works. For that let's move to our ease of access center. Here make the mouse easier to use. हम यहाँ आए. Look, here various types of pointers are there. जो भी आपको लगता है it is better that you can click, अप्लाई, ओके. चेंज हो गया माउस, दिख रहा है आपको? गुड. वापस वहीं चलते हैं. माउस इजियर टू यूज. दिस ऑप्शन इज क्लियर. नीचे आते हैं. टर्न ऑन माउस कीज. थ्रू दीज कीज दीज आर यूज टू मूव द माउस अराउंड द स्क्रीन. जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी न्यूमेरिक पैड में कीज़ हैं हमारे पास, और आप अगर आपके पास कीबोर्ड अवेलेबल है यू कैन सी ऑन द कीबोर्ड वेरियस कीज आर हैविंग एरो सिंबल्स. आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस दोज कीज विल वर्क फॉर मूविंग राइट लेफ्ट टॉप बॉटम. ओके. देन नेक्स्ट इज activate a window by hovering over with the mouse. मीन्स सपोज आई डोंट वांट टू क्लिक, और जैसे मैं उसके ऊपर लेके जाऊंगी दैट थिंग गोज ऑन स्टार्ट. जैसे मैं स्टार्ट बटन पे लेके जाऊं दैट विल ऑन. डब्ल्यू सिंबल पे क्लिक करूं वर्ड ओपन हो जाए. मीन्स नो नीड फॉर क्लिकिंग, सिर्फ उस ऑप्शन के ऊपर ले जा के रखना इज सफिशिएंट. ये अभी क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज आई हैव नॉट क्लिक्ड ऑन अप्लाई एंड ओके. होवरिंग का मैंने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में भी बताया आपको. Prevent window from being automatically arranged when moved onto the edge of the screen. अब देखिए I have not clicked here. अब ध्यान से देखेंगे मैं इस विंडो को यहाँ से पकड़ के कॉर्नर में ले जा रही हूँ. ये बड़ा हो गया अपने आप. मैं वापस आपको दिखा रही हूँ. जैसे ही आप कॉर्नर में ले जाएंगे छोड़ेंगे इट विल ऑटोमेटिकली एनलार्ज, ऑटोमेटिकली अरेंज इटसेल्फ. बट इफ आई क्लिक ऑन दिस और अप्लाई ओके, आप देखिए मैं इसको वापस पकड़ के ले जा रही हूँ. नहीं हो रहा बड़ा, चाहे मैं इसको कितना ही अंदर ले जाऊँ. इट मीन्स दैट ऑप्शन इज प्रिवेंटिंग कि माउस से बाई चांस हमसे इधर उधर. मैंने अभी डिसेबल कर दिया बिकॉज आई डोंट वांट इट. ओके, आई थिंक ऑल दीज आर क्लियर टू यू. चलिए नेक्स्ट इज मेक द कीबोर्ड इजियर टू यूज. अभी हमने पढ़ा था how to use mouse easier to use. now we are on the keyboard. कीबोर्ड को कैसे बेटर हम यूज करेंगे. वापस ease of access center खोला. here the next option is keyboard easier to use. when we click on this here what we can see again वही mouse keys आ गई. means आपके numeric pad पे जो keys हैं they'll start working as mouse keys for the movement up down right left that we can do. then नेक्स्ट इज टर्न ऑन स्टिकी कीज. स्टिकी कीज क्या है? मैक्सिमम टाइम ऑन द कीबोर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ 2 keys और 3 keys they work
बाय प्रेसिंग इन अ कंबाइंड फॉर्म. सपोज ऑल्ट प्लस F4 अगर प्रेस करें तो कोई भी विंडो बंद होती है. बट आई एम नॉट दैट मच एक्सपर्ट इन प्रेसिंग 2 कीज और 3 कीज कलेक्टिवली. होता है ना, कोई कोई बच्चा इकट्ठी 2 कीज या 3 कीज नहीं दबा पाता. फॉर दैट इफ आई क्लिक ऑन दिस एंड देन पहले मैं ऑल्ट दबा दूँ, 2 सेकेंड के बाद फिर मैं F4 दबा दूँ, इट विल टेक दैम एज कॉम्बिनेशन. एक बार में एक ही बटन दबाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद सपोज मुझे ऑल्ट कंट्रोल डेल तीनों कीज इकट्ठी दबानी है, तो इफ आई क्लिक ऑन टर्न ऑन स्टिकी कीज, एक बार ऑल्ट दबाया, दूसरी बार फिर मैंने कंट्रोल दबाया, थर्ड टाइम मैंने डेल दबाया, तो इट विल काउंट ऑल दीज 3 क्लिक्स एज द कॉम्बिनेशन. जिनके हैंड मूवमेंट्स में इशू है वो लोग इकट्ठी 2-2 कीज या 3-3 कीज नहीं दबा पाते. फॉर देम दिस ऑप्शन इज देयर. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज टर्न ऑन टॉगल कीज. मीन्स हेयर आपके इन योर keyboard, caps lock, num lock, scroll lock, all these keys are there, they are called toggle keys. With these keys, if I click on this, the toggle keys will be on. Now I'll show you. I clicked here, turn on filter keys, click on apply, click on OK. अब मैं यहाँ आ रही हूँ एंड वर्ड खोला है, आई हैव ओपन द वर्ड, मैंने A प्रेस किया. ओके, A. कॉन्टिन्यूसली. अब मैं प्रेस नहीं कर रही हूँ, मैंने दबा के ही रखा हुआ है. इफ आई एम प्रेसिंग इट, nothing is typing, and if I am holding it, only then it is typed. Means it's you can say movement issue for some students, those who cannot type at one go, जिनको माउस की क्लिक्स में इशू होती है. ओके, दीज आर स्टिकी कीज. एक बार ज़रूर गो थ्रू होना है इससे. ऑल द थिंग्स विच एवर आई एम स्पीकिंग दे आर हेयर. नाउ वी विल लर्न use text or visual alternatives for sound. Means those people who are having issues in hearing, सुनने का प्रॉब्लम है जिनको, for them how the technology in computer that can help and how it make easier to focus on task. Means how the concentration can be increased. चलिए let's move to of ease of access center. हम आ गए यहाँ पर. Now use text or visual alternatives for sound. I have clicked here. Here you can see turn on visual notification for sound. मीन्स जैसे हम कहीं क्लिक कर रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं, हमें कोई साउंड सुनाई देनी चाहिए. आप देख रहे होंगे जैसे मैं कोई चीज़ क्लोज करती हूँ या कुछ नई चीज़ खोलती हूँ, अ न्यू साउंड इज देयर. फॉर दैट दिस ऑप्शन शुड बी इनेबल्ड फॉर एनी विजुअल नोटिफिकेशन. विजुअली कोई चीज़ अगर दिख रही है, फॉर दैट after enabling this option the notification will be given in the form of sound. ओके, कोई आवाज़ के तौर पर कहीं पर नोटिफिकेशन देनी है, दैट विल बी गिवन इन विजुअल. आवाज़ की बजाय आपको विजुअल नोटिफिकेशन मिलेगी. गॉट इट. देन विजुअल नोटिफिकेशन के 5 तरीके दिए हुए हैं. ओके, मीन्स कैप्शन बार पे आपको नोटिफिकेशन मिले, एक्टिव विंडो पे नोटिफिकेशन मिले, या डेस्कटॉप पे फ्लैश हो. गॉट इट. द विजुअल नोटिफिकेशन के तरीके. देन टर्न ऑन टेक्स्ट कैप्शन फॉर स्पोकन डायलॉग. जब भी आपके पास नेट कनेक्ट होगा, इफ दिस ऑप्शन इज इनेबल्ड, इट विल शो द टेक्स्ट कैप्शन. मीन्स बंदा देख तो सकता है, सुनने में इशू है. कोई भी चीज़ अगर आपके साउंड के थ्रू सिस्टम ने बतानी है, दैट विल बी डिस्प्लेड इन रिटन फॉर्म. ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन था यहाँ पर फोकस. फॉर दैट मेक इट ईजियर टू फोकस ऑन टास्क. अब फोकस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रीडिंग अगर कर रहे हैं तो नरेटर ऑन कर देंगे, क्योंकि बोल बोल के सुनाएगा वो आराम से हमें. ठीक है. बैकग्राउंड में कोई मूवी, कोई वीडियो, कोई फोटो में एनिमेशन चल रही है, उसको हटा देंगे. रिमूव बैकग्राउंड इमेजेस, इससे भी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी. फाइन. देन टर्न ऑन स्टिकी कीज. कुछ बच्चे लगातार 2-2 4-4 कीज इकट्ठी दबा देते हैं. हाँ, अगर हम इसको ऑन कर देंगे
तो कितनी भी कीज़ आप इकट्ठी दबा लें दैट विल नॉट वर्क. टॉगल कीज़ का ऑप्शन हम ये सब पढ़ चुके हैं, आई डोंट वांट टू रिपीट दैम. फ्लैश विजुअल्स, कोई एनिमेशन वगैरह बार बार आ रही है, कोई ऐड आ रहा है, दैट यू कैन स्टॉप बाय क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन. कोई ना चाहने जो विच यू डोंट वांट अननेसेसरी एनिमेशंस कैन बी स्टॉप फ्रॉम हेयर. और कितनी देर रुकेगा, दैट टाइमिंग यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हेयर. देन सेम, प्रिवेंट विंडोज फ्रॉम बीइंग ऑटोमेटिकली अरेंज्ड. मैंने अभी कॉर्नर में यहाँ कहा था कि जैसे हम यहाँ कोने में लाते हैं इट ऑटोमेटिकली बिकम्स enlarged. The same options, maximum things we have covered here. Okay. Now let's get back to our PPT. That's it for now. First of all, try all the options practically in your system. Then all these options will be more clear to you. Okay, beta. Enjoy. Take care.